Hey everyone, welcome to Decoded. I am Ghazal and this is the very first video of Decoded. So, first things first, this is not a channel where I'm going to teach you how to code. There are already some great YouTubers, channels out there, doing their fantastic job at that. So, let me give you a quick introduction. I'm Ghazal, recently graduated in 2025 and got campus placed as a software engineer. Right now, I'm stepping into this new journey, learning a lot from experienced people in the company, and I really want to share the mindset I learned from the software engineers or the developer, that needs while coding. Like what actually goes on behind the scenes of building a feature or writing any piece of code. And today I'm starting with the new series on Lead Code Daily Challenge where I'll be sharing the mindset I have while solving the problem, the approach I take, and what the end result looks like. So let's get into it with let's decode a lead code daily question 2131 medium question, which is longest palindrome by concatenating two letter words. Okay, let's start with this. So, question states longest palindrome. What is palindrome? The medium of language will be like English and Hindi both. So I hope you are all comfortable with both the languages. I'm going to use English. Okay. So what is a palindrome? Palindrome, a string, when get reversed, it's the same with the original string. For an example, here is a string that I'm having, which is ABBA. Okay, when I reverse this string, again it gets ABBA. So what it is? It is a palindrome. Okay, so I hope you all understand what is a palindrome. So we have to create the longest palindrome by concatenating two letter words. So in this, we got a string array where we get two letter words and we have to create the longest palindrome from that and we have to return the length of the longest palindrome. In this question, we have to return the length of the what will be the length of the longest palindrome. We have to return that. Okay, so for this, let me tell you what is a two letter word. Two letter word is nothing, just having two characters only. It is stated having two characters only, as you can also see in the question A B T Y Y T L C C L A B C C. Okay, so let's think how we can make a palindrome with this particular string. Okay, so what can I make from this string? What if I take TY and YT? Are these palindrome? This string is a palindrome. Yes, this string is a palindrome. If I take another, uh, which is LC and CL, is it a palindrome? Yes, it is a palindrome. Okay. So what if I concatenate both of the this and let's see what can be the longest palindrome that I can make. The longest palindrome can be that I can make is, as in the question it is clearly state that every particular word can be used once a time only. So we cannot reverse, like for an example, if there is AB, I cannot reverse this AB as a BA and use it in the my mainstream. It is not possible, it is restricted in the question itself. Okay, to use each and every word in a single time, it is also mentioned there. So the longest palindrome I can create a longest palindrome with the TY, LC, maybe CC, and then I can create CL and YT. This is the longest palindrome that I can create, which the size can be of 10. Okay. You can here and there change the position of TY and LC, but you have to make a that string only which creates a palindrome. Okay, so this is the palindrome that I can think that can be made. So what is the main thinking that I'm thinking of? As you can see, there are the two different kind of words. लाइक दो डिफरेंट तरीके के वर्ड्स हैं, जैसे कि पहला हो गया सीसी और दूसरा हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड जैसे कि टी वाई. ये दो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स हैं हैविंग डिफरेंट थिंग्स.
ऐसे वर्ड्स जिनके जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे ए बी टी वाई वाई टी एल सी ए बी। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको अपन यूज कैसे कर सकते हैं? अगर हमें टी वाई को यूज करना है, इफ आई वांट टू यूज टी वाई, तो टी वाई का अगर मुझे पैलिंड्रोम बनाना है, टी वाई को यूज करके पैलिंड्रोम बनाना है, तो वो तभी बन सकता है जब मेरे पास उसका रिवर्स हो, वाई टी एग्जिस्ट करता हो, तभी उसका मिलके मैं एक पैलिंड्रोम बना सकती हूँ, विच इज टी वाई वाई टी। तो ये अपने आप में एक पैलिंड्रोम बन जाएगा। ओके। एंड द सेकंड इज द सी सी, ऐसे कैरेक्टर्स जो लाइक सेम हो, जैसे ए बी बी सी सी जेड जेड। अब अगर क्वेश्चन में सी सी ए बी बी के जो काउंट है वो एक से ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं? सपोज मुझे क्वेश्चन में ए भी दिया होता, 2 बार ए दिया होता, तो मैं क्या करती, इस स्ट्रिंग के अंदर एक ए को यहाँ लगा देती और एक ए को एंड में लगा देती। तो इससे मेरा एक पैलिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है, एक ए को आगे लगा देते, एक ए को पीछे। लेकिन सपोज मेरे पास एक ही ए होता, तो फिर मैं क्या करती, इस ए को मैं सेंटर में अपेंड कर देती, इस ए को मैं सेंटर में अपेंड कर, तो ये भी मेरा एक पैलिंड्रोम बन गया। यस, ये भी मेरे एक पैलिंड्रोम बन गया है। इट्स अ लाइक, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लाइक यू कैन ऐड द सी सी इन लाइक 2 डिफरेंट वेज, या तो मैं आगे और पीछे लगा सकती हूँ एज रिटन इन दिस एग्जाम्पल, और मैं सेंटर में यूज कर सकती हूँ, तो ये मिलके मेरा क्या एक पैलिंड्रोम बना देगा। ये एक मेन थिंकिंग है जो हमको अब क्लियर हो गया है कि एक पैलिंड्रोम बनाने के लिए हम इन लेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। सो नाउ हियर कम्स, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब जब मुझे इसका रिवर्स चाहिए, तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि अगर मुझे ए बी को यूज करना है, तो मुझे इसका रिवर्स बी ए चाहिए। टी वाई करना तो वाई टी चाहिए, वाई टी चाहिए तो टी वाई चाहिए, एल सी चाहिए तो सी एल चाहिए। मुझे सारे वर्ड्स के रिवर्स होना जरूरी है इस एरे में, तभी मैं उसको एज अ पैलिंड्रोम बना सकती हूँ। अब जब मैं इसको सपोज लाइक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या एक एक बेसिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि मैं बेसिकली इसको आइटरेट करूं, हर वर्ड्स का रिवर्स ऑर्डर देखूं, और देखूं क्या वो रिवर्स ऑर्डर क्या मेरा ये मेरे पूरे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं यूज कर सकती। सिंपल। अगर मैं टी वाई है, टी वाई का चेक करूंगी रिवर्स ऑर्डर वाई टी क्या मेरे पूरे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो टी वाई वाई टी को मिला के मैं एक पैलिंड्रोम बना सकती हूँ, है ना। तो अब जब बारी है स्टोर करना है, तो हम स्टोरेशन के लिए क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं? सेट का यूज किया जा सकता है। हाँ, सेट का यूज किया जा सकता है, लेकिन सेट के साथ दिक्कत ये है, वो एक लाइक उसका मेन कैरेक्टर है कि वो यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब ए बी का रिवर्स बी ए होता है। अगर बी ए मेरे पास मल्टीपल टाइम्स एग्जिस्ट करते होंगे, तो वो बी ए सिर्फ एक बार लेगा। तो इसकी वजह से ये उसका एक कॉन्स आ जाता है कि हम यूज नहीं कर सकते हैं सेट को। इंस्टेड ऑफ दिस, हम ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन हो, सिर्फ लाइक मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम किसको यूज कर सकते हैं स्टोरेशन के लिए? आई थिंक अनऑर्डर्ड मैप। Unordered map is a great option to use when we are talking about storing something and retrieving anything from that storage thing. Okay. तो डेटा स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, तो हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप का यूज करेंगे। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द सेट थिंग, एज यू कैन सी। लाइक ये जो पूरा नोट से ये जो स्ट्रक्चर है जिससे मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दूंगी। तो अगर आपको चाहिए हो लाइक लर्निंग पर्पज से कुछ भी, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द ड्राई रन। मैंने एक आइट्रेशन रेडी किया है। ठीक है, तो अब मैं हर एक एलिमेंट पे आइट्रेट करूंगी with the size. Let me add a indices at this. यानी 7th लेंथ का मेरा एक एरे, ये स्ट्रिंग एरे है। जब मेरा 0 इंडाइसिस पे, तो मैं ये देखूंगी पहले कि क्या मेरा जो ए बी का रिवर्स है बी ए बी का रिवर्स जो है बी ए, क्या वो एग्जिस्ट करता है मेरे मैप में? अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसको यूज कर लूंगी। क्यों क्यों यूज कर लूंगी? लाइक अगर मेरा सपोज बी ए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक मैं सॉरी ए बी है, ए बी का रिवर्स बी ए है, बी ए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए बी प्लस बी ए मिला के मेरा एक पैलिंड्रोम बन सकता है। हाँ, मेरा पैलिंड्रोम एक बन सकता है ए बी बी ए।
क्या बन जाएगा, ABBA, ये मेरा एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोम बन जाएगा। इसके लिए मैं इसको यूज कर लूंगी चेकिंग पर्पज के लिए। मैं देख रही हूँ क्या मेरा ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर में जो भी मेरा वर्ड है क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या पहले आ चुका है, तो हम उसको मिला के एक पैलिंड्रोम बना दें। ओके, एज इंस्टेड मेरा AB अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं AB लूंगी और इसके काउंट को मैं 1 कर दूंगी। यहाँ पे मैं एक लेंथ वेरिएबल बनाऊंगी क्योंकि मुझे एक लेंथ को बताना है, तो यहाँ पे मैं लेंथ को स्टोर कराऊंगी। नाउ मेरा आई गया इधर, आई मेरा यहाँ आया TY पे, तो TY के लिए मेरा रिवर्स क्या हो जाएगा, YT। क्या मेरा YT एग्जिस्ट कर रहा है मैप में, नहीं, YT एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं PY को स्टोर करा दूंगी एज 1। फिर जब मेरा थर्ड आइटरेशन आएगा विच इज YT, तो मैं YT के लिए चेक करूंगी, तो YT का जो रिवर्स हो जाएगा वो जाएगा TY। क्या मेरा TY एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ मेरा TY एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इसके आइटरेशन को इसको यूज कर लूंगी, जो मैंने देखा है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, मैं इसको यूज कर दूंगी और मैं इसके काउंट को अपडेट कर दूंगी विच इज 0। मैं डिक्रीमेंट कर दूंगी 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगी, तो मेरा बी के लिए क्या पैलिंड्रोम बन जाएगा, TY और YT। ओके, तो इसका लेंथ क्या है 4, तो मैं इसमें लेंथ कितना ऐड कर दूंगी, 4 ऐड कर दूंगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन विच इज LC। सेम वी गो विद द LC का जो रिवर्स है विच इज CL, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो मैं LC का जो है वो मैं 1 को वो अपडेट कर दूंगी। अब CL, क्या CL मेरा जो रिवर्स है वो है LC, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेम मैं क्या करूंगी, क्या कहते हैं, LC मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसके काउंट को अपडेट कर दूंगी एंड आई विल मेक इट 0 ऑफ इट। अब मैं काउंट को अपडेट करके क्या कर दूंगी, 0 कर दूंगी। ओके, और मैं यहाँ इसको यूज कर दूंगी, तो एक LC मेरा कहाँ गया, LC एंड CL। अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन विच इज AB। क्या मेरे AB का BA एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, BA एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं AB को यहाँ स्टोर करा दूंगी विद द नेक्स्ट आइटरेशन। मैं अपने AB को स्टोर करा दूंगी एज 1। नाउ हियर कम CC। CC का रिवर्स ऑर्डर है CC ओनली, क्या CC एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो मैं CC को भी लूंगी और यहाँ एज 1 अपडेट करा दूंगी। तो यहाँ पे मैं वो सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए जो डिफरेंट डिफरेंट लेटर से बने हुए हैं, 2 लेटर वर्ड्स जो डिफरेंट लेटर से बने हुए हैं वो हो गया है, तो मैं ये अपडेट करा दूँ। अब नेक्स्ट में क्या करने वाली हूँ, अब मैं दोबारा लूप चलाऊंगी मेरे इस मैप में, मैं अपने इस मैप में दोबारा से लूप चलाऊंगी और ये फाइंड आउट करूंगी ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो सेम वर्ड्स में एक्सेस एक्सेस करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, जैसे मैप में चलाऊंगी तो मैं एक इफ की कंडीशन लगाऊंगी, इफ की कंडीशन लगा के मैं ये देखूंगी ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट वर्ड, लाइक 0 इंडाइसेस पे वर्ड, 0 इंडेक्स पे वर्ड एंड फर्स्ट इंडेक्स पे वर्ड सेम है और उनका काउंट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो सेम है और उनका जो काउंट है ग्रेटर देन 0 है, तो फिर मैं क्या करूंगी, इसको मैं यूज कर लूंगी और मैं लेंथ कितना ले लूंगी, 2। तो मैं यहाँ अपडेट करना भूल गई थी, जब मेरा CL और LC और CL जब मेरे एक पैलिंड्रोम बना है मिलके, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, +4 से दोबारा ऐड कर दूंगी और जब CC ने ऐड किया तो मैं 2 से उसको ऐड कर दूंगी, तो ये मेरा एक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बन जाएगा। तो CC क्योंकि मेरा 1 है तो मैं इसको सेंटर में ऐड कर दूंगी, तो ये मेरा एक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बन गया है। तो लेट्स टॉक अबाउट द सूडो कोड। आई होप ड्राई रन आपको क्लियर होगा, एक बार आप दोबारा खुद से भी ट्राई कीजिएगा। और अब सूडो कोड की बात करते हैं। तो सूडो कोड में क्या मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक लेंथ वेरिएबल बनाया। ओके, लेंथ वेरिएबल बनाया और उसके बाद मैं एक अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर रही हूँ। मैं एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट करूंगी हैविंग स्ट्रिंग और दूसरा एक इंटीजर वैल्यू जिसमें मैं अपने काउंट को स्टोर करा रही हूँ विच आई हैव नेम्ड इट एज मैप। तो मैं पहले एक फॉर लूप बनाऊंगी,
जो कि मेरे डिफरेंट लेटर वर्ड्स के लिए होगा, डिफरेंट लेटर वर्ड्स के लिए होगा। तो इसमें मैं क्या करूँगी, एक फॉर लूप बनाऊंगी जिसमें मैं आइट्रेट करूंगी मेरे हर एक वर्ड को विद द एरे आई गॉट ऑफ वर्ड्स। उसमें मैं आइट्रेट करूंगी, और आइट्रेट करने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं हर एक एक वर्ड का, जैसे मैं एक रिवर्स निकाल रही हूँ, तो हर एक एक वर्ड का मैं रिवर्स निकालूंगी, जिसको मैं एक रिवर्स वर्ड वेरिएबल बना देती हूँ। अब किसी को भी रिवर्स वर्ड बनाने के बहुत से तरीके हैं। मैं स्वैप मेथड का यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो इंटीजर, लाइक दो इंडेक्सेस के लिए ही वर्ड्स हैं। तो मैं स्वैप कर सकती हूँ 1 को 0 से, 0 को 1 से। तो मेरे को वो एक रिवर्स पेयर मिल जाएगा। और मैं रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकती हूँ, उससे मुझे मिल जाएगा। और थर्ड थिंग इज विच इज नॉट टू यूज एनी फंक्शन, सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ, पोजीशन को चेंज कर दूं, बेसिकली विदाउट यूजिंग एनी स्वैप फंक्शन। आई एम डूइंग अ स्वैपिंग इनडायरेक्टली। तो मैं यहाँ वर्ड 1 कर दूं और यहाँ पे वर्ड 0 कर दूं, तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से स्वैपिंग हो गई, तो मेरा रिवर्स वर्ड बन गया है। अब रिवर्स वर्ड बनने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं एक इफ की कंडीशन लगाऊंगी, और मैं ये चेक करूंगी क्या मेरे मैप में वो एक्चुअल में जो रिवर्स वर्ड है, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है। और एग्जिस्ट करने का मतलब है, क्या उसका ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका काउंट ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगी, आ, मैंने क्या करना है, मैंने लेंथ को मैंने अपडेट कर देना है, ऐड एंड अपडेट कर देना है बाय 4। क्योंकि जब वो ऐड होगा तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का जो काउंट होगा, क्योंकि मैं 1 से डिक्रीमेंट कर रही हूँ, जो अभी मेरे पास आया है प्लस पिछले बार का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसको मिला के मेरे फॉरवर्ड का लेंथ का एक पैलिंड्रोम बन जाएगा। लेंथ 4 कर दूंगी। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, मैं अपने जो मैप में जो मेरा रिवर्स वर्ड है, उसके काउंट को अपडेट कर दूंगी और डिक्रीमेंट कर दूंगी। बेसिकली मैं उसको डिक्रीमेंट कर दूंगी। ये काम होगा जब मुझे वो वर्ड मिलेगा, है ना, जब वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर जब वो एग्जिस्ट नहीं करे तो मैं क्या करूंगी, मैप में मेरा जो ओरिजिनल वर्ड है उसको मैं स्टोर करा दूंगी एंड मेक इट एज अ काउंट 1। तो ये मेरा पहला फॉर लूप है जो मेरे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के लिए काम कर रहा है। वॉट अब दूसरा फॉर लूप क्या होगा, जब मेरे ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे जो सिमिलर वर्ड्स होंगे, तो उनके लिए मैं क्या करूंगी, मैप में आइट्रेट करूंगी। मैं आइट्रेट किस में करूंगी, मैप में आइट्रेट करूंगी। मैप में आइट्रेट करूंगी, और मैप में आइट्रेट करने के बाद मैंने क्या करना है, मैं ये चेक करूंगी पहले, मैप में आइट्रेट करने के बाद मैं एक पहले एक वर्ड लूंगी, और जिसमें मैं IT डॉट फर्स्ट ऐसे करके मैं स्ट्रिंग के वर्ड को अलग कर लूंगी। और फिर मैं काउंट वेरिएबल बना के मैं उसके काउंट को अलग जगह स्टोर करा दूंगी, जिससे मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेरा इजी हो जाएगा। उसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगी और मैं देखूंगी कि मेरा जो वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड जो मैंने स्टोर किया है, जैसे कि मैंने इधर CC स्टोर कराया है, रेफरेंस के लिए मैं दे देती हूँ CC स्टोर कराया है, और यहाँ पे मेरा काउंट क्या है, 1 है। तो मेरा वर्ड ऑफ जो 0 है, वर्ड ऑफ 0, क्या वो मेरे इक्वल है वर्ड ऑफ 1 के। अगर मेरा इक्वल है एंड उसका क्या काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये मेरा एक इफ का कंडीशन है। CC विच इज अ C, a particular C in a word of 0 and then second C in the word of 1। ठीक है, क्या वो ऐसा है, अगर ऐसा है तो what will I do, अगर ऐसे तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने लेंथ को अपडेट कर दूंगी, 2 से मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूं, क्योंकि सिर्फ CC यूज कर रहे हैं। और जो अगर सपोज 2 C एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी इस फॉर लूप के अंदर वो केस मैंने ऐड कर लिया है। तो लेंथ को 2 से अब वो करूंगी, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, MPP का जो वो पर्टिकुलर वर्ड जो है, जो IT है या जो वर्ड है, उसको मैं क्या करूंगी, डिक्रीमेंट कर दूंगी। और बेसिकली मैं ये कर सकती हूँ, मैं ब्रेक कर दूंगी, खत्म। सिंपल है, कोई वो नहीं है, इजी मीडियम क्वेश्चन है, बट सिंपल है। ठीक है, तो इसकी वजह से मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप यूज किया है। अनऑर्डर्ड मैप में हम कोई भी एडिशन करते हैं या उनसे रिट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, बिग ऑफ 1 हो गया। ये एक फॉर लूप है।
जो मैं अपने एन तक चला रही हूँ, विद द एन नंबर ऑफ वर्ड्स तक चला रही हूँ, तो ये बिग ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी देगा मुझे। और ये एक अनदर लूप है जो मैं अपने मैप में चला रही हूँ। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरी बिग ऑफ एन। और मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि मैं एक अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रही हूँ और उसमें वर्स्ट केस में एन नंबर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं और वो कोई भी पैलिंड्रोम नहीं बना सकता। तो वर्स्ट केस में मेरा ये क्या हो जाएगा? बिग ऑफ एन ओनली। तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। ये पूरा का पूरा सूडो कोड है। सी प्लस प्लस का कोड ये इधर रखा है और जावा का कोड ये रहा। आपके रेफरेंस के लिए सी प्लस प्लस और जावा का दोनों का कोड है। अब ये तो हो गया, हमने लेंथ निकाल के दे दिया। ओके, व्हाट इफ यू आर इन एन इंटरव्यू एंड द सेम क्वेश्चंस कम्स, और आपके इंटरव्यूअर ने ये बोला है कि ओके आपने पैलिंड्रोम का लेंथ दे दिया बट आई वांट दैट लाइक एग्जैक्ट पैलिंड्रोम दैट यू आर स्टोरिंग। क्या है वो एग्जैक्ट पैलिंड्रोम जो आप बना के मुझे, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम क्या बना के दे रहे हो? आप मुझे पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग दो, तो आप क्या करोगे? अ नाइस क्वेश्चन, अनदर ग्रेट क्वेश्चन बोल सकते हैं इंटरव्यू। तो रेफरेंस के लिए मैं एक यही वाला देती हूँ। आपने नोटिस किया होगा जब मैं ये पर्टिकुलर पैलिंड्रोम बना रही थी, तो आई डिड वन थिंग, टी वाई वाई टी के बाद मैं एक एक वर्ड लेफ्ट में डाल रही थी, एक वर्ड राइट में डाल रही थी। तो मैं यहाँ सी एल डाल रही हूँ, तो यहाँ मैं उसका रिवर्स एल सी डाल रही थी। करेक्ट। अब इसको हम कैसे करेंगे? अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर मैं इसको दोबारा देखती हूँ, तो एक पर्टिकुलर जो मेरा स्ट्रिंग है, ये जो वर्ड है, ये 3 फेज में डिवाइडेड है, लेफ्ट, राइट एंड दिस इज मिडिल। मिडिल को मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, सी सी इज इन द मिडिल। 3 चीजों में, 3 वर्ड्स में डिवाइडेड है। व्हाट इफ आई डू वन थिंग, मैं 3 वेरिएबल्स ले लूँ डिफरेंट, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स ले लूँ, विच इज अ लेफ्ट हाफ, राइट हाफ एंड मिडिल। लेफ्ट हाफ क्या होगा? जितने भी लेफ्ट हाफ के जो मेरे वर्ड्स हैं वो स्टोर करेंगे राइट हाफ में, राइट हाफ के वर्ड्स स्टोर करेंगे और मिडिल में मिडिल वाला स्टोर होगा। तो जब मैं इन तीनों को अपेंड करूंगी, कॉन्केटिनेट करूंगी, तो मुझे पैलिंड्रोम मिल जाएगा। इजी। ये मैंने यहाँ आपको कोड में दे रखा है, मैं कैसे कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ 4 वेरिएबल बनाए, लास्ट इज अ पैलिंड्रोम वाला, जिसमें मैं आपको अपेंड करके शो कराने वाली हूँ। ठीक है। तो लेफ्ट, राइट एंड मिडिल। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ही मेरा पहला लूप चलता है, यहाँ पे रिवर्स वर्ड्स मैंने निकाले हैं। उसके बाद जब मैं मैप में चेक करती हूँ पर्टिकुलर वर्ड और वो एग्जिस्ट करता है, तो मैं लेफ्ट में क्या कर रही हूँ, रिवर्स वर्ड प्लस लेफ्ट, और राइट में ओरिजिनल वर्ड को स्टोर करा रही हूँ। अब मैंने रिवर्स वर्ड डॉट लेफ्ट क्यों किया? सपोज मेरे मैप में टी वाई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और मैं वाई टी का रिवर्स करके टी वाई को देख रही हूँ, क्या मेरा टी वाई एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ, टी वाई मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं लेफ्ट में क्या डालूंगी? एज मेरा कोई रिवर्स वर्ड अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं रिवर्स वर्ड डाल दूंगी, मेरा क्या है, वाई टी। ठीक है। और राइट में मेरा क्या आ जाएगा? राइट में आ जाएगा मेरा टी वाई। सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एलसी और सीएल की बात करते हैं। हेयर कम्स एलसी, जिसका जो एग्जिस्टिंग है वो सीएल है। ठीक है। तो मैं अगर, एलसी है मेरा ओरिजिनल वर्ड है, सीएल मेरा क्या है, रिवर्स्ड वर्ड है। तो अगर मैंने टर थिंग, आई डू वन थिंग, मैं यहाँ लेफ्ट बनाती हूँ और यहाँ पे मैं टी वाई टी सी एल डाल देती हूँ और यहाँ पर राइट वेरिएबल बनाती हूँ और यहाँ पे मैं आपको टी वाई दे देती हूँ। ठीक है। तो टी वाई के साथ मैंने क्या ले लिया, मैंने एल सी को स्टोर करा दिया। सपोज एल सी को स्टोर करा दिया, तो जब मैं इसको अपेंड करूंगी, लेफ्ट प्लस राइट कर रही हूँ मैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, वाई टी सी एल टी वाई एल सी। आप देख सकते हो क्या ये मेरा एक पैलिंड्रोम बन रहा है? अगर मैं लेफ्ट को राइट को एक साथ अपेंड करा रही हूँ, तो क्या ये मेरा एक पैलिंड्रोम बन रहा है? क्या ये मेरा एक पैलिंड्रोम बन रहा है? नहीं, नहीं बन रहा। ये कब बनेगा? मैं क्या कर सकती हूँ जिससे पैलिंड्रोम बन जाए? थिंक अबाउट इट। अगर सपोज लेफ्ट हो या राइट,
को कहीं पे भी मैं अगर ऐसा कर देती कि CL को मैं पहले स्टोर कराती, फिर YT, CLYT एंड TYLC, अगर मैं ऐसा करती तो क्या ये मेरा एक पैलिंड्रोम बन रहा है? हाँ, मेरा एक पैलिंड्रोम बन रहा है। इसलिए मैंने रिवर्स वर्ड को मेरे जो भी लेफ्ट में जो ऑलरेडी स्टोर्ड वर्ड है उसके एक वर्ड पहले स्टोर कराया है और राइट वर्ड को वहां कराया है। नेक्स्ट में मैंने एक ओरिजिनल वर्ड को मैंने यहाँ स्टोर करा दिया राइट में, और लेफ्ट वर्ड में रिवर्स वर्ड स्टोर कराया है। और जब मैं दूसरा फॉर लूप आइटरेट कर रही हूँ, उसमें जैसे ही मैं मिडिल निकालती हूँ तो मैंने वहाँ मिडिल वर्ड को स्टोर करा दिया है। ऐसे मेरा एक प्रॉपर पैलिंड्रोम बन रहा है और मैं अब स्ट्रिंग को रिटर्न करा सकती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने आपका अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जावा का कोड रेफर करना है तो ये जावा का कोड है। यू कैन इम्प्लीमेंट जावा इन जावा का कोड द स्ट्रिंग वाला थिंग, कि अगर स्ट्रिंग का पूछ लिया तो जावा के कोड में कैसे लिखेंगे। C++ से मैंने आपको एक लाइक बताने के लिए मैंने आपको कोड दे दिया है C++ का। एंड पूरा ये शीट जो है ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए। और प्लीज़ फीडबैक में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या क्या अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। आई एम प्लानिंग टू डू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वीडियो, जिसमें मैं आपको डेव के एक पर्टिकुलर फीचर के बिहाइंड द सीन्स बताऊं कि वो किस तरह से काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए।